To my class, and in this I'm little talk about what the question paper is actually all about. So this is what we'll be doing. The sample paper, CBSE sample paper has been released long back of 2021-22, and we also know that there'll be 40 marks. It'll be for 40 marks and the duration is 90 minutes. All are short answer, one mark questions. So the general instructions, as you go through the paper, you'll come to know. And I'm going to explain that a little bit to you. And along with that, let me just also tell you that there are so many books that have come up in the market about the question paper. Like, for example, I have also been sent two of these. One is by Subhash Dey. It's a handbook. It's a complete book. I mean, if you for practice, it's a good thing. So it's an exam handbook. It's economics, which is effective for CBSE Term 1, as you can see. And also I've been sent one more like this by ULIKE. And both of them have this, what is known as, here of course there are multiple choice questions, etc. They both have the CBSE sample papers and the CBSE handouts for the various questions. So it's a very good idea to go through all of this to see, to understand what it is. Going through the sample paper 2021-22 by CBSE, this is what I understood. That जनरल इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने बताया है पहला कि 60 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 50. एंड जो पूरा पेपर होगा ना, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वाला 1 मार्क ईच का है पूरा, ये इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. सो लेट्स जस्ट टेक अप द सेक्शन ए. उसमें 24 क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम 1 to 24 क्वेश्चंस, और उसमें आपको अटेम्प्ट करना है एनी 20. और सेक्शन ए में जो आप नीचे देख रहे हो, जो मैंने करा है, कि उसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, या फिल अप द ब्लैंक्स, और ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू सी द सैम्पल पेपर CBSE का जो है. देन यू हैव सेक्शन बी में there are 24 questions, question 25 to question 48. To question 48. So out of that you have to attempt only 20. सिर्फ 20 उसमें से करने हैं. और इसमें क्या, इस सेक्शन में जनरली आप देखोगे assertion and reason है, स्टेटमेंट्स होंगे. इन स्टेटमेंट assertion और reason स्टेटमेंट से आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है. वो 3-4 ऑप्शंस देंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है. ऑलराइट, सो दैट इज सेक्शन बी. कितने क्वेश्चंस हैं? 24 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48, उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 20. इज दैट क्लियर? अब आ गया जी आपका सेक्शन सी, जिसमें 12 क्वेश्चंस हैं और आपको अटेम्प्ट सिर्फ 10 करने, एनी 10. और मैंने पाया कि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन सम गिवन डेटा. इट कैन बी अ डायग्राम, इट कैन बी सम टेबल, उसके बेसिस पे. और ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हैं और कुछ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल केस स्टडीज़, जो हमने अभी केस स्टडीज़ करी है ना, जो CBSE ने भेजी थी उस पर. इवन दे आर गिवन इन प्रोफेसर सुभाष दे's book, and also in ULIKE. And maybe if you go through that, then you come to know that section 3 is based on the given data or based on the hypothetical case studies. और try and understand, जितना practice करेंगे उतना अच्छा होगा. So you have to have a lot of practice material. You can get your books. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है all questions, जनरल इंस्ट्रक्शन 3 है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, जो आप देख रहे हो. और जो 4 है कि देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. सो यू कैन हैप्पीली सिलेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. थोड़े सालों में आई एम श्योर दिल कम अप कि नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा, बट जस्ट बिकॉज वी आर बिगिनिंग टू कम इन हियर,
there is no negative marking. So once again, just go through the general instructions. While you go through the general instructions, make sure that you have a paper with you. You can also download it either from the CBSE साइट से भी आप कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा. 50 क्वेश्चंस में 40 मार्क्स हैं, वो दे विल जस्ट रिड्यूस इट टू दैट, सो नथिंग टू वरी, बिकॉज द 60 मार्क्स अगेन इज long answer questions which you will have to do in December, Jan. Right. So with that, happy studying. There's hardly any much time left. And one more thing which is very important, which I must tell you, कि आप ये जो पेपर आएगा ना, इसमें आपका आ जाएंगे 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट 2, 4 and 5, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2, जिसमें 6 मार्क्स होंगे. गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के भी 6 मार्क्स होंगे, ये यूनिट 4 है. और यूनिट 5 जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके 18 मार्क्स बन जाएंगे आपके. तो इतने यहाँ से आगे आपके 6 मार्क्स, टोटल 18 मार्क्स आगे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है. और बाकी 22 मार्क्स जो हैं आपके पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 6 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. इसमें आपका आ गया इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल. इसके टोटल मार्क्स 12 होंगे. फिर आपका यूनिट 7 में आ जाएगा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. इसमें पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है और रूरल डेवलपमेंट है, जिसके टोटल मार्क्स 10 हैं. सो 12 + 10 आपने देखा 22, एंड 22 + 18 कितने हो जाएंगे, टोटल 40 मार्क्स. सो जस्ट बी वेरी, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे समझ के, आई एम श्योर यू विल डू वेल, ठीक है. सो यू शुड ऑल्सो उसी तरह से आप डिवाइड करो, वैसे ही आप अपनी प्रेपरेशन करो, एंड आई एम श्योर यू विल रियली डू वेल. ओके देन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन.